Welcome to dear students in this offline session. Today we will discuss distance formula. You know that yesterday we learned about different terms related to coordinate geometry. Today we will discuss distance formula. Distance formula. What is the distance formula? Distance formula is that formula, particular formula, with the help of which we can find distance between any 2 points in a plane. Let us derive distance formula. That way, take this a plane, a quadrant of a plane X, O, Y. Here we take points 1, 2, 3, 4, 5, 6. And on this y-axis, we also take points 1, 2, 3, 4, 5, 6, and also 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You know that in first quadrant of Cartesian plane, x coordinate and y coordinate, they take positive values. So these are positive values. Positive. For instance, there are 2 points point P and point Q. The coordinates of point P, let coordinates of point P are x1, y1. यहाँ पे हम लिखेंगे x1, y1. And coordinates of point Q, they are x2, y2. So these are called as ordered pairs. x1, y1, x2, y2. Point on x-axis is called abscissa, and the point on y-axis are called as coordinate. So we have 2 points, point P and Q. We have to find distance between P and Q. What we do? We first join these 2 points. We join P and Q. We have to find the distance between P and Q. We draw perpendiculars on x-axis from P
From P we draw perpendicular, say PR, and from Q we draw another perpendicular, say QS. PR is one perpendicular on O axis and QS is another perpendicular. We also draw perpendicular from P on QS. P से हम QS पर एक और परपेंडिकुलर डालते हैं. यहाँ पे इसको हम T रखेंगे नाम. तो PT जो है ये QS पे परपेंडिकुलर है. मैं दोबारा रिपीट करूंगा. P और Q प्लेन में दो पॉइंट्स हैं. P और Q के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करनी है, जबकि हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2. तो यहाँ पे हम P और Q से यहाँ O एक्स या x एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, PR and QS. We also draw perpendicular from point P on QS, cutting QS at T. तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गई है QPT और PTQ. ये ट्रायंगल बन गई यहाँ पे. अब हम इन ट्रायंगल्स जो हैं इनके ये जो साइड्स जो हैं वो पहले हम मालूम करेंगे. पहले हम यहाँ पे ये समझो कि OR जो है ये x1 है. OR is equal to x1. OS is equal to x2. क्योंकि x पे ये 0.6 है, यहाँ पे जो यहाँ ये x2 है, तो यहाँ पे हम ये OS देते हैं x2 के बराबर. तो यहाँ जो ये QS जो है या PR y1 के बराबर है. PR is equal to y1 और जो QS है QS it is equal to y2. अब जो RS है RS हम मालूम करेंगे. RS is equal to यहाँ पे ये PT के बराबर है. PT is equal to जो RS जो है ये किसके बराबर है? बस ये OS माइनस OR के बराबर. ये क्वेश्चन RS जो है ये OS माइनस OR. तो ये होगा बराबर OS जो है ये x2 के बराबर है माइनस OR जो है x1 के बराबर. इस तरह से जो RS है या PT, RS और PT ये बराबर है आपस में. ये किसके बराबर है? OS माइनस OR which is equal to x2 माइनस x1. तो ये जो है PT x2 माइनस x1 के बराबर. अब QT
हमें मालूम करना है। QT जो है, QT इज इक्वल टू QS माइनस TS। तो यहां पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू QS जो है, QS Y2 के बराबर है माइनस TS जो है ये PR के बराबर है। PR यहाँ पे Y1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Y1। तो इस तरह से QT Y2 माइनस Y1 के बराबर निकला। Now we have to find this distance PQ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे PTQ। इन राइट ट्रायंगल PTQ we know PQ square। ये PQ square, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। PQ square इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एक्स टू, या यहाँ पे हम लिखेंगे PQ square इज इक्वल टू PT square प्लस QT square which implies PQ square is equal to PT square। PT जो है ये किसके बराबर है, x2 माइनस x1 के बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। QT किसके बराबर है, QT बराबर है y2 माइनस y1। यहाँ पे हम लिखेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो इस पे ये रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ इस तरह से, PQ किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमें मालूम होगी। PQ इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला या डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। Either the points lie in the same quadrant or different quadrants। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो तो उस सूरत में भी हम यही फार्मूला अप्लाई करके हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, तो अगर कोई दो पॉइंट्स, यहाँ पे ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ ए पे या एक्स एक्सिस पे लाई करता है और कोई भी पॉइंट वाई पे लाई करता है उससे पॉइंट बी, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो किसके बराबर होगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ, यानी ए बी जो है ये बराबर होगा ए बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है दोनों में। यहाँ पे एक्स जो है ये इस ए का ऑर्डिनेट क्या है, एक्स 0, और बी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 y। तो ये कोऑर्डिनेट्स जब हम इस फार्मूला में
इस्तेमाल करेंगे तो हमें ए बी का वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर निकलेगा। तो इस तरह से अगर कोई दो पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस पे हो और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस वो किसके बराबर होगी? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम दूसरे सेशन में जो है पूरी एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। तो बाकी वसलम, शुक्रिया।